Yes, sir. Okay. The first thing that you should know, this chapter has no concept except for these three. So basically, when we talk of this chapter, chapter 9, there are basically only one case, only one part. This chapter has only one part, and that is whenever it is vice versa. Let me check out. Whenever, suppose there is a zameen and there is a building on that zameen, and if someone is standing over here and sees the top of the building, then with respect to ground, there is some angle. And you know that this angle is known as angle of elevation. Now, if a person is standing over here and suppose there is a flower pot over here, and if he sees below, then again with respect to horizontal, there is angle. This angle of deflection. This is angle of deflection. And these two lines are known as line of sight. These two lines are known as line of sight. Okay. So basically this is all about heights and distances. मतलब कुछ भी नहीं रखा है सिवाय इसके. So I would like you to go through a practical application of it. देखना चाहोगे, मैं इसको दिखाना चाहूंगा आज प्रैक्टिकल एप्रोच. यस युवराज, अदिति, समझा क्या? जोएल, पीयू. हाँ सर, समझा. I will show you a practical application of whatever I have said, है ना? So let me bring into picture the practical application. So here it comes. Just give me a minute. So I'm sharing with you. So my dear student, this is I'm sharing with you the introduction along with the application, right? So be ready there. So here we go. युवराज, आप हो ना बेटा? हाँ सर. शाबाश, है ना? तुम आए तो बाहर आई, ऐसा है. So yes, my dear students, can you see me firstly? Yes, sir. Yes, sir. Great. And can you just let me increase the volume? So my dear student, this is. So my dear students, बराबर बोला? आवाज आई? Yes. चलो मैं start कर रहा हूँ, है ना? All of you show me your thumbs up before I start. Thumbs up.
Yuvraj thumbs up, Joel thumbs up, Aditi thumbs up. Okay, Piyush. Dipankar Banik signing in. I once again welcome you to Soch. Now here comes the next chapter, chapter number 9. That is some applications of trigonometry. We have seen in the introduction of trigonometry, and we have seen various aspects of trigonometry in trigonometry. Now from there I take the reference and I give you the same example. Manu watching or looking at the top of the tower. दिख रहा है मनु के आंखों से कुछ निकला है, उसके आंखों से क्या गया? रेज ऑफ लाइट. बिकॉज as we are physics students, rays of lights would come from the object and hit the observer's eyes, Manu's eyes. So ये जो rays of light है जो Manu's eyes to the top of the tower गया है, इसको line of sight कहा जाता है. This is known as LOS, that is line of sight, right? Or on the ground on which he is standing is simply the reference, that is the ground, and this tower is of some height. Let me take that height as AB, and the distance between Manu and that height, that is tower, say this is BC, and the ray of light is nothing but CA, right? That is the line of sight. Now can't you see, for looking at the top of the tower, Manu has to do like this. That means he is being elevated. This is known as angle of elevation. The angle at which he saw the top of the tower is known as angle of elevation. Where else can we see this angle of elevation? Let's check out. We see the angle of elevation like Manu is observing the kite. Somebody is flying that kite. Patang ud rahi hai. But Manu is observing that kite. So there is again a line of sight. There is again a ground, as we can see. But the kite is moving. So his angle of elevation is there, but it is variable. The angle of elevation is moving and moving. It is kept moving throughout the position of the flight. That is the kite, right? So this is how we see the angle of elevation in various incidences, right? Now do you recollect that moment when Manu was standing on a balcony and he was observing a flower at the opposite of what we say proper river, right? So we see in this scene also Manu is looking down. He is low while looking at the object opposite to his place. So there is a ray of light downside, but with respect to what? Here we cannot take the reference ground. So what we do, we take a line parallel to the ground and with respect to the eyes of the Manu. So it makes some angle, it makes. By the way, it is from the eyes, it is showing from the mouth. That is the mistake of the editor. I will correct it. Bad joke by the way. Some angle, but in the downside throughout the line of sight, and this angle being down, depressed, is known as angle of depression. As we know, while we are in depression, we become low like this. So this is angle of depression, and earlier we saw the angle of elevation. So when I see up, that is angle of elevation. When I see down, this is angle of depression. So this is introduction to some applications of trigonometry. Now my dear students, to understand angle of elevation, angle of depression, let me take a practical life example. What happened? This question is a practical life situation. The shadow of a tower standing on a level ground. Why they said level ground? It is not a zigzag ground, right? It is plain ground. So level ground, there is a tower standing on a level ground, right? Now since the tower is standing, there is a sun. The sun rays are falling on the tower. बहुत सारे rays उसपे पड़ रहे, गिर रहे, right? Now what we observe? That this shadow of a tower standing on a level ground is found to be, there is a shadow because of that rays of light, there is a shadow formed on the ground, as we can see. And this shadow is found to be 40 meters longer.
40 meter longer, they say. Try to understand the language. Longer when the sun's altitude is 30 degree. इसका मतलब जब sun 30 degree पे है, how come the sun's altitude is at 30 degree? So with respect to ground, if we see sun and we draw a parallel line to the ground, then that angle of depression is found to be 30 degree with respect to that shadow. So therefore, as per the corresponding as per the alternate angles, this 30 degree between two parallel lines, the 30 degree would resemble this 30 degree in the practical situation, right? Shadow at 30 degree. Now this length of the shadow is found to be 40 meter longer. That means वो 40 मीटर बड़ा है. It is longer than what? Than when it is at 60 degree. That means sun तो move होगा as the day moves on, goes on, right? So जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे sun का position change होता है. So when sun is at 60 degree, the altitude is at 60 degree. Again we see the parallel line. The angle of depression is at 60 degree. So at 60 degree the shadow is perhaps smaller. Now therefore we say this 40 meter is longer than this shadow at 60 degree. This is what we understand. So what we have to find the height of the tower. So let me find the height of the tower, but before that let me see the diagram. Let me name the tower as AB. टावर को हम लोग ने AB दे दिया, and the 30 degree shadow length as BD and the 60 degree shadow length as BC. So therefore AB, I take out a diagram over here. In this diagram the AB is height of the tower, that is H, and let me check out BC. I don't know, BC is X, and the 40 meter longer is nothing but that is CD. Right, CD is 40 meter longer, and one angle is at 30 degree initially, and later it is 60 degree. So this is the whole situation represented on a line diagram with the help of the practical life situation. So this is actually understood. Acha, first of all, before I proceed ahead, is this understood the question before the solution? Yes, sir, बस ब्लॉक हटा दीजिए. हाँ, ब्लॉक हटा दो बेटा. मतलब ये रुको. हाँ, एक सेकंड. आप लोग को पहले बताओ, सबको क्वेश्चन समझा ना, है ना? मैं ब्लॉक हटा रहा हूँ. यस सर. ओके, ग्रेट. तो अभी जस्ट अ मिनट. अभी देखो तो ब्लॉक गया क्या? Yes. नहीं क्या? सर वो डायग्राम पे आ रहा है. Right back. अच्छा, एक मिनट. हाँ, स्टॉप शेयर. जस्ट अ मिनट. मुझे ऐसा लगता है कि अभी बताओ. हाँ सर, अब चलो स्टार्ट करते हैं. Now let me check out the solution. How do I approach for the solution? Since this is a right angle triangle, right angled at B, as we can see, because tower is standing upright. Now right angle at B, therefore 90 degree at B. Now there are two angles, 30 degree, 60 degree. We have to find height of the tower. With respect to 30, 60, what is H height, that is AB? It is opposite. Right, and hypotenuse के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ. Hypotenuse is BD and BC, but AD and AC, but nothing has been mentioned about hypotenuse. इसका मतलब ये हुआ कि we have to focus on the other side apart from opposite. So apart from opposite जो बच जाता है वो क्या होता है? Adjacent. Opposite and adjacent correlates with what? The trigonometric ratio tan. Therefore we take in triangle ABC, that is 60 degree wala triangle, what we have, tan 60 degree is equal to, from here tan 60 degree is nothing but opposite upon adjacent. What is opposite? H. That is nothing but H upon X. What is tan 60 degree? Root 3. So therefore root 3 is equal to H by X, therefore H equal to root 3X. This is equation number 1. Now similarly I have another bigger triangle, triangle ABD. Triangle ABD में क्या देखा आप लोगों ने? Triangle ABD is nothing but tan 30 degree, of course. Because why we say tan 30 degree? Yes, you got it right, because again opposite upon adjacent, right? Opposite is again H, but adjacent is made up of 40 plus X, as you can see from here. So I put 40 plus X. But tan 30 degree is 1 by root 3. And at the same time, this is equation number 2. We can put equation number 1 to equation number 2, the value of H. So what is the value of H? Root 3x upon 40 plus x equal to 1 by root 3. Cross multiply them, then root 3x into root 3 equal to 40 plus x, which is nothing but root 3 is square root of 3 ka square, that is 3x equal to 40 plus x, which is nothing but 3x minus x equal to 40, and therefore 2x equal to 40, therefore x equal to 20.
right? Now therefore from equation 1 we can see, put the value of x, and therefore we get h is root 3x, that is root 3 into 20, that is h equal to 20 root 3 meter is the height of the tower. So this is the answer of the tower. So my dear students, समझा गया रे सभी को? Yes. Yes, sir. तो वी कैन एक्चुअली सी इट प्रैक्टिकली कैसे करना है ना? मतलब मैं आज तुमको फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज दिखा रहा हूँ जो तुम लोग इसके पहले कभी मेरे से देखे नहीं, मतलब लाइक आई वुड रादर शो यू, जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट मी चेक आउट कि वो जो मैं दिखाना चाहता मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, this and like this equal to h so upon I have a beautiful question. So what you will be doing, अपना रजिस्टर और पेन ले लो, क्वेश्चन भी तुमको साथ में लिखना पड़ेगा, मैं भी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है ना? So I'm showing the question, right? So are you ready with your right क्या बोलते हैं, पेन एंड this thing? एक मिनट देख Yes. है ना? चलो, तो मैं अभी प्रैक्टिकली बोर्ड में जैसा पढ़ाते वैसा पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली एकदम। आर यू गेटिंग? मतलब ये वाला बोर्ड नहीं, डिजिटल वाला, प्रैक्टिकली उसको आपको लिखना पड़ेगा। आई विल पॉज इन बिटवीन एंड जहां नहीं समझाऊं मुझे पूछना, मैं अपने डिजिटल बोर्ड से समझाऊंगा। समझा क्या प्रोसेस है? युवराज, पीयू, अदिति, जोएल, इज दिस ओके? ग्रेट, great. So here we go. Thanks for your consent. So before that, let me do Jingalala. So मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आता है आपका, अबे कहाँ गया बे? दिख नहीं रहा। जस्ट अ मिनट, क्या हो गया पता नहीं इसको। So मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों को मेरे प्यारे दोस्तों हो गया हो, है ना? यस, आप लोग मुझे देख पा रहे हो बच्चा? यस और नो? Yes, sir. और एक मिनट, एक बार साउंड देख लेते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, समझे? दिखा सुनाई आया क्या मेरे प्यारे दोस्त? Yes. हाँ, तो पेन और पेंसिल स्टार्ट अपना तैयार रखो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? एक बार आप लोग का कॉन्सेंट ले लेता हूँ। यस, आर यू रेडी गाइस? शो मी योर कॉन्सेंट। आर यू रेडी? राइट, ऑल ऑफ यू आर रेडी। राइट 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 राइट, ग्रेट 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 ग्रेट, दिस इज रियली ऑसम। मतलब आप लोग नहा के आए हो आज, है ना? हर बार की तरह इस बार आप लोग ने नहाने की बहुत अच्छी बात कही। So here we go. My dear students, 9th chapter has no parts. So some applications of trigonometry, I took an example which will help you understand the concept very easily, right? So I read the question and accordingly I draw the diagram. The first step is to draw the diagram. A man on the top of a vertical tower. So what I am going to do, I am going to draw a tower. So a man on the top of a vertical tower. So there is a tower and of course there is a man here. So suppose I represent a tower in a very basic diagram like this. So there is a man at the top of the tower. Suppose the man is at this point. Observe the car moving at a uniform speed. So there is a car. So I drew a car, a basic car. So he observes this car. So for that, what he has to do? Of course, there will be an angle of, yes, very good. There will be an angle of depression. So he will observe this car. Suppose the car is at C, right? And suppose the man is at this position. Suppose this tower is named as AB. I name this whole tower as, this is point A and B is the point where man is observing this car. Now this is coming towards this, the direct, it is directed towards this, like this, right? So the car is coming towards the tower. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from up, the car is, since the car is moving, so there will be first angle of depression is this, and as it moves, suppose it comes to a new place, suppose the place is here, as we can see, so this is the new place. Suppose the car acquires this new place. So naturally,
the ray of the line of sight will change from this position to this position. So that means it will come to a fresh point, say this point and this point. So there will be a change in what do you guess? There will be a change in angle of depression. So initially it has to be less 30 degree, and finally it would be a greater, that is 45 degree. So this is how you understand the changes, right? How soon after this? Now after this matlab it has come to a point, say D. After this, how soon this car will reach the tower? It will reach to its destination. So the figure is very clear. If I see the figure properly, then what I come up with basic figure as, if I join this, so this is C and this is D. So this point is, say C, this point is D, and this point is. So there is a triangle you can see here, right? And this triangle has two kinds of angles. One is, of course, this one, 30 degree, and one is, of course, this one, that is 45 degree. And this is height of the tower. As I can see, this is height of the tower. The figure is pretty clear to one another, right? Now, the student can think of this figure by taking it out of this figure. As in, if you bring this figure out of this, so we will have simple like this, and we have this and like this. So this is our figure. This is 30 degree, this is 45 degree, this is point C, this is point D, this is AB, this is right angle. Of course, this height is, say, H. Right? So this is how the figure can be represented at one go. Now I am asking you what is to be done. The solution has to be very specific. This is the first part that we do, drawing the figure, right? It has come in CBSE exams, right? 2006. There I saw this from the appeared paper. So this is really important. It may appear in your future examinations. So now, my question to you, my dear students, how to proceed in such question? The very first thing that I understand, I am given with only angle of depressions and no other data has been given except for this 12 minutes. So I know if I take the speed of the car as S, suppose if I take the car moves with the speed S, suppose the speed of the car is S. So let me assume here, let S equal to speed of the car. So speed of the car can be taken as, since it is in minutes, so we take meter per minutes for sake of convenience. And I know speed is equal to what? Distance upon time, right? So what is the distance? Distance will be speed into time. So first thing that I understood from here is that our time has been given as 12 minutes. From here to here, how many minutes? 12 minutes. So this distance will not be 12, it is 12 minutes. So 12 multiplied by, that is speed, that is 12s will be the distance CD. That means this distance is nothing but 12s, right? That is what we understood. Now, if I say the time taken by the car to reach from here to here is, say, t time, then this will be simply distance. This distance I am not aware, so this will be what? St. That means this distance will be what? S into t, that is distance is speed into time. So this is nothing but S into t. So all parameters are being calculated from this figure to this figure, one and the same thing. Enough. You can take out this figure out of this figure. This is more apt figure. Now, very simple. We have to get the answer of what? How far this will, I have to get the time t to the nearest second. Calculation is to be nearest second. So by simple logic, there are two triangles. One triangle is the bigger, that is BAC. So in triangle, the bigger one, BAC. There is this angle 30 degree and this is opposite. See, we have opposite adjacent in terms of given. So opposite adjacent corresponds to what? Tan. So we are bound to take tan. So tan of kya ho jayega? 30 degree. Tan of 30 degree will be what? Height upon this
12s. Now try to understand. So tan 30 degree will be height upon h upon this whole length. So this will be h upon, this is 12s plus st, that is 12s plus st. What is tan 30 degree, my dear students? Tan 30 degree is nothing but, yes, you got it right. Tan 30 degree is nothing but sin 30 cos 30. Sin 30 is 1 by 2, cos 30 1 by root 3 by 2. So this is 1 by root 3 equal to h upon 12s plus st. At the same time, in triangle, in the small triangle, in the small triangle BAD, we can see tan 45. Let's say equation number 1. Tan 45 degree is what? Can you see? Tan 45 degree kya hai? Yes, you got it right. It is opposite upon st. But tan 45 degree is what? 1. And therefore we conclude that h will be also what? st. Agreed? So this is equation number 2. So from 1 and 2 we can see both has h in it. Right? So can't I put the value of h from 2 in this one so as to get the answer? So let's calculate now. Very simple, right? How to go? So what I'll be doing? Put 2 in 1. What will happen? 1 by root 3 will be equal to, in place of this, st upon, here s is common, so s is common. This is 12 plus t. Now you can easily see s cancels. Now we have to find t. So what I'm going to do is simple. Take t at one side. So 12, this cross multiply, 12 ones are 12 plus t ones are 2 plus root 3t. Now t will go from this side to this side. So 12 will be what? Therefore you can always write, therefore this is root 3 t minus t. So what is common out here? Of course, t is common, and therefore t comes out to be 12 upon root 3 minus 1. Now here comes the process of rationalization that we have studied in real numbers, standard 9 and 10th, right? So what we are going to do, conjugate se multiply kar denge. So this is root 3 plus 1 and root 3 plus 1. A plus b, a minus b is a square minus b square. A square minus b square matlab 3 minus 1, और ये हो जाएगा 12 into root 3 plus 1. So what is 3 minus 1? That is nothing but 2. So therefore this is 12 root 3 plus 1 whole upon 2. 2 ones are 2, 2 6 are 12. Now this is 6. What is root 3? Perhaps you will be given in the exam 1.732 ऐसा कुछ दिया रहेगा. So this is nothing but 1.732 plus 1, which is nothing but 6 into 2.732. Now we multiply this and get the answer to the nearest second. So as we can see, this can easily, therefore the final answer that came out is t will be equal to, come on, let us do it. 2 6 are 12 ka 2 carry 1, 2 3s 2 6 are 12 ka 2 carry 1, 6 3s are 18 carry 1, 19 ka 9 carry 1, 6 7s are 42, 143 ka 3 carry 4, 6 2s are 12 plus 4 is nothing but 16. So this is 16.392. So to the nearest seconds. So this many, what we say, this time will be taken by this thing, our group. Now, if this is the answer, this is in minutes. This is in what? Minutes. Right? This is in minutes. Now, if I want to convert it into seconds, what I will have to do? I will have to understand it in terms of seconds. So I take t is equal to 16 minutes plus 0.39 can be taken as good as 0.39 can be taken as, say, for the time being we take it as 0.39 minute 92, because up to 2 seconds. So, but 1 minute, as I know, 1 minute is equal to 60 seconds. So 0.39 plus multiplied by what? 60. So finally we get 16 minute, and this is 6 9s are 54, carry 1. 6 9s are 54, carry 5, I'm sorry, 6 3s are 18 and 5 is 23, right? So this is nothing but plus 2 3 4, 23.4 seconds. So therefore this is the final answer of our time. That is nothing but 16 minutes and 23.4 seconds is our final answer. Thank you. समझा क्या सभी को? इसको लिखने देता हूँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं. Yes, all of you are there. Are you there, guys? Yes. सब मुझे ना अभी थोड़ा ब्लर Yes, sir. दिख रहा है.
तुमको ब्लर लग रहा है मतलब नेट का इश्यू है बेटा, लेकिन क्या ब्लर गया, मतलब क्या चीज नहीं समझा बेटा, एक एक चीज तो पता है पूरा सर अब ठीक हो गया ना। बस। तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट लोगे, मैं अपने आपको थोड़ा सरका देता हूँ, है ना, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और 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 एक मिनट, हाँ। ये है पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, है ना। एक बार इसको आप लोग क्वेश्चन लिख लिए थे क्या, कि लिखना चाहते क्वेश्चन, क्वेश्चन से दिखाओ। लिख लिया था। हाँ, तो आप डायग्राम बनाओगे और सॉल्यूशन तो पूरा सामने रखा है, ये 3 बॉक्स, 3 जो लाइंस है, 3 जो सेक्शंस है ना। तो इसको अभी के अभी आप लोग लिखोगे और मुझे लिखते हुए दिखोगे भी, देखो जरा थोड़ा सा लिखते सर हुए। वो बॉक्स हटा दो ना। अच्छा, ये बॉक्स हटा दूं, मतलब ये बॉक्स एक्चुअली किसका है पता है? अभी शायद चले गया, देखो तो बॉक्स चले गया क्या? मेरे ख्याल से बॉक्स नहीं, वो ही पूरा चले गया, है ना। एक बार फिर से मैं सामने रखता हूँ, रुको, जरूरी है वो आप लोग के लिए। कहाँ गया वो? एफ 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 9, ये वाला मैं एक बार रीशेयर कर रहा हूँ। So, मेरे प्यारे दोस्तों, my dear students, 9th chapter has no parts. So, some applications of trigonometry, I took an example with which. Just a minute, huh? Now I'm able to probably put it in front of you properly. So now this is the question, है ना, बॉक्स भी नहीं दिख रहा होगा। So आपका थोड़ा सा और आगे, यस, ये थोड़ा सा पीछे करते हैं। मेरे को ना उसको बराबर हिसाब से एक जगह रोकना पड़ेगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या? रुको, कहाँ से लेना है? ये तो पूरा हो गया, हल्का, हाँ, यस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। सॉल्यूशन डायग्राम तो बना लिया होगा, और नहीं तो मैं अपने आप को सरकाऊंगा फिर। अब एक ग्रुप डी का क्वेश्चन मैं लूंगा आप लोग के सामने, खुद करके दिखाऊंगा। जैसे लिखना हो जाएगा प्लीज बताना मुझे, है ना। मेक श्योर यू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, नहीं तो नहीं समझेगा, इसलिए। मतलब मैंने कैलकुलेशन तक लाइव बताया है, ऐसा नहीं कि मैं लाइक कहीं और से
कुछ बता रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली लाइव बताया आपके सामने करके. Don't you think this is important question? While you are writing, please answer this. ऑडिबिलिटी के हिसाब से बताना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोग को, सुन पा रहा हूँ. Yes, don't you think this is a very important question? क्या हुआ? आवाज आ रही है क्या? यस सर. तो तुमको लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पूछ रहा हूँ. हाँ सर. एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड्स का बहुत मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है. बहुत साल पहले आया था, 14 साल पहले, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. पता है एक राज की बात, जितने भी पिछले 5 साल या 6 साल के पहले क्वेश्चन है ना, उसको करना शुरू कर दो, तुम्हारे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे. ये हिंट है तुम लोग के लिए. उस वक्त बहुत अच्छा लेवल होता था पेपर का, अभी तो बहुत ही सिंपल हो गया. सर एक बार डायग्राम बता दो ढंग से. हाँ, डायग्राम बता देता हूँ, जस्ट लेट मी. ये पूरा डायग्राम है, सब लिख लो इतना डायग्राम. दिस इज द होल ऑफ इट. फिर सॉल्यूशन की तरफ वापस आऊंगा मैं. मतलब लोगों को प्रॉब्लम क्या जाता है पता है, कि इसका डायग्राम बना के इसको कन्वर्ट करना. मतलब मैंने आपको प्रैक्टिकली भी डायग्राम बताया, ऊपर वाला प्रैक्टिकल डायग्राम है और नीचे वाला जो भी है थ्योरेटिकल है. राइट, अभी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन. सो डायग्राम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पीड डिस्टेंस टाइम का भी क्वेश्चन हो गया. रिटन. बाकी सब बच्चे, सर सॉल्यूशन लिखना है. हाँ सॉल्यूशन लिखना है. ये लो सॉल्यूशन, अभी और क्लियर दिख रहा है. लिटरली ऐसे करके बोर्ड्स में लिखा जाता है. मतलब अगर ऐसे लिखोगे तो कोई कोई माइकल लाल आपका मार्क्स नहीं काट सकता. कैलकुलेशन स्टेप्स, है ना, बराबर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देना, डायग्राम को मैच करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना. लोगों का प्रेजेंटेशन के देखो, राइटिंग में भी थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट प्रेजेंटेशन इतनी क्लैरिटी होना चाहिए कि देयर इज नो स्कोप ऑफ डिडक्टिंग इवन हाफ मार्क्स आउट ऑफ द होल लॉट. अच्छा बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन तुमने सच बताना, मतलब कभी भी जब बात करना है ना, तो एकदम ईगो को साइड में रख के बात करना. इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद से किया या क्लास में हुआ? जिसमें स्पीड आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, टाइम आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है. हुआ है क्या, खुद से किया या फिर स्कूल में हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है, अच्छा, एनसीईआरटी में ही बहुत है. तो तुम लोग को आते हैं अच्छे से? आते हैं क्या अच्छे से? वो एनसीईआरटी क्वेश्चन में ना कुछ वैल्यूज दी रहती है, इसमें नहीं दी है. मैंने जो पूछा उसका आंसर नहीं दे रही हो ना तुम. मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को अच्छे से आते हैं क्या?
सभी को पूछ रहा हूँ, तुम लोग को ये क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं क्या? नहीं सर। बाकी बच्चे पता है यहाँ पे कहाँ मार खाते बच्चे? एक तो डिस्टेंस को स्पीड, मतलब वो यही डिसाइड नहीं कर पाते कौन से, जैसे मैंने 12s लिया, एसटी लिया ना, लोग वहां पे फंस जाते हैं पहला, और वो आ भी गया, कैलकुलेशन में फंसते हैं। एग्रीड और नॉट? इतना उसमें कैलकुलेशन देखो कितना लंबा चला आखिरी आखिरी। चलो अब टाइम तो हो गया। यस, शैल आई स्टॉप नाउ? Yes, sir. So my dear student, this is one of the finest. So हम लोग अभी जो क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसा ही रहेगा, बट बहुत लाइकली क्वेश्चन है ना? सो वो लाइकली क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं, है ना? सो हियर वी गो, जस्ट अ मिनट, है ना? मेरे को इसका ये लेने दो। ओके, स्टॉप शेयर। सो साउंड और ये भी जाएगा और मेरा वाइट स्क्रीन आएगा ना, तो वाइट स्क्रीन तो ऑन पोजीशन पे ही है। तो वाइट स्क्रीन कहाँ गया मेरा? व्हाइट बोर्ड, यस, व्हाइट बोर्ड इज हियर। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी कम बैक टू माय पॉइंट, है ना? आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्यों अटेंड नहीं कर रहे पता नहीं। आज वैष्णवी नहीं है, शदान नहीं है, यू नो, और कौन था, दो जन शायद नहीं है ना? सो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। दिस क्वेश्चन, सर एक डाउट था, जो मतलब जैसे वैष्णवी और शदान ये लोग बोर्ड्स के पहले तक रहेंगे कोचिंग में, हाँ शायद इसका फायदा भी ले रहे हैं उन लोग, हाँ, क्योंकि उन लोग को लगता है अरे अभी तो तो सर आप फिर से यही सब पढ़ाने वाले हैं? मतलब अभी तो आप नहीं क्रैश ना, कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहे क्रैश हैं। कोर्स के हिसाब से ये पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उनको हम लोग वर्कआउट बहुत करवाते हैं। एक्चुअली उसका फायदा ये होता है, जैसे सर तो नए बच्चे भी तो ऐड होते तो आप उनके साथ ही क्रैश कोर्स कराते होगे ना? नहीं, उनका कैसा है, देखो नए बच्चे जब आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन लिया, पहले वाले क्रैश कोर्स में नहीं लिया, पहले वाले इसमें दूसरा लिया था, है ना? पहले वाले इसमें क्या लिया था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने दूसरा लिया था। तो हर बार क्रैश कोर्स में क्या होता है, अलग अलग वेरिएशन से क्वेश्चंस लेता हूँ, जिससे जो पुराने बच्चे उनका नुकसान नहीं होता और जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आता है। लेकिन जो आखिरी तक टिका है उनका फायदा ये होगा, जैसे तुम लोग का ये लास्ट सेशन है शायद, है ना, पीयू और इसका अदिति का, राइट बेटा? नो सर, 15 को खत्म होना था बट कल की छुट्टी हो गई तो 16 को। और मेरा 15 राइट। तो उसके बाद लाइक एक बार ये हो गया, इन लोग का आगे का चलते रहेगा। अभी जैसे आगे के जितने भी क्लासेस रहेंगे, युवराज और जोएल को जो भी मिलेगा। जोएल तुम्हारा लास्ट कब है? 15 को है क्या? हाँ सर। तो उसके बाद आगे का जो भी चलेगा वो एडिशनल क्वेश्चंस, वर्कआउट, फॉर एग्जांपल बहुत सारे केस स्टडीज के किस्से लिए जाएंगे, कुछ केसेस लिए जाएंगे, बहुत कुछ है उसमें। एमसीक्यूज वर्कआउट किया जाएगा। अच्छा हाँ, तुम लोग ने एमसीक्यू किया क्या? अच्छा याद दिलाया। एमसीक्यू किया क्या तुम लोग ने? थोड़ा बहुत की, ज्यादा नहीं। थोड़े बहुत सर सर मुझे लेकिन आप डाउट है। नहीं भी दोगे ना सर हमें एमसीक्यू पता फिर चलता है कि चलेगा। आप एमसीक्यू आप कहाँ कहाँ से से रॉ लेते हैं। मटेरियल उठाते हो? क्या? सर हमें हमें पता पता चलता चल है गया कि आप कहाँ से मटेरियल लाते हो, आई मीन कहाँ से सब। तो मैंने तो यस बहुत, सर। मैंने तो पहले ही बता दिया ना तुम लोग को कि एक जगह है जहां से, तुम लोग को सुनाई में नहीं आया वो बात अलग है। मैंने बोला कि एक बंदा है जो पूरा फ्री में मटेरियल देता है ना? नहीं, सर वो एक सीबीएसई साइट है। ऑनलाइन पे है सब। वो एक्चुअली वो ऑनलाइन सीबीएसई, कोई सीबीएसई का साइट नहीं है, किसी ने उसको सोशल सोशल एक इनिशिएटिव करके डाला है, समझ रहे हो? ऐसा है। तो बहुत बड़ी बात है ना सोशल इनिशिएटिव करके डालना। कोई आजकल ऐसा कोई फ्री में देता थोड़ी ना। सो उन्होंने उनसे मेरी अच्छा है बात, ना, अब अच्छा है ना, अब हमको आप पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। बात डिपेंडेंट की नहीं है, तुम लोग वो खुद से कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, लेकिन उसका जो अप्रोच है वो इम्पोर्टेंट है। और वो अप्रोच जो होता है वो तुम लोग को भी आ सकता है प्रैक्टिस के साथ, या फिर हम लोग जब साथ में प्रैक्टिस करते तो उससे भी आ सकता है, दोनों से आ सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है ना? चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। मेरे साथ साथ तुम लोग सभी ऑन स्क्रीन पे आ जाओ अभी के अभी, और ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखो, है ना? uh, if the
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ऐसा लिखना पड़ेगा आप लोग को. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम कहीं से तो ऑब्जर्व करेंगे ना, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स. मीटर्स की स्पेलिंग देख लेना, मीटर की स्पेलिंग मेरे को लगता है गलत हो गया है ना. h मीटर्स above the just a minute, above the lake. एक कोई तो भी लेक ले लेते हैं, है ना. above the lake is alpha. तुम लोग कहाँ चले गए थे? सर आप लीव हो गए थे. अच्छा चलो कोई बात नहीं, होता है लाइफ. चलो मैं ये कहाँ पे था, एंगल ऑफ एलिवेशन. ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन, जिससे पूरे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते है ना. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्या, ऑफ इट्स लेकिन रिफ्लेक्ट आपने पॉइंट से छोड़ा था, उसके बाद आपने अबव द लेक क्या लिखा है? अबव द लेक इस अल्फा ना दिखनी. एक मिनट को देखता हूँ, सर देखो वो ना. आई नहीं लग रहा ना इस नहीं, इज अल्फा अब दिख रहा है सबको, है ना. इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इट्स मतलब क्लाउड रिफ्लेक्शन, है ना. इन द लेक में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा ना क्लाउड का, इज बीटा. देन प्रूव दैट द हाइट of the cloud is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha. Right? Okay? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, लिख लिया सबने? अच्छे से लिखो. This will conclude our session today. आज कृष्णा भी नहीं आया. जो तुम लोग पूछ Written, रहे, sir. हाँ जो तुम लोग पूछ रहे थे ना, रेगुलर बैच का सबसे बड़ा फायदा ये है, उसमें जो मॉक पेपर्स होते हैं ना, पूरा फुल लेंथ डिस्कशन मिलता है. क्रैश कोर्स में वो स्कोप ही नहीं है ना, बिकॉज यू आर हियर फॉर 45 डेज. और मॉक पेपर वैसे में एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा स्कोप रहता है. तुम 1 करो या 10 करो, है ना, कम ही पड़ता है, बट प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा. तो ये वाला क्वेश्चन तुमने पहली बार देखा कि दूसरी बार? दूसरी बार. तो पीयू बताओ कैसे करते हैं. मैं 5 मिनट सर रुकता हूँ. पता है पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं. अच्छा हो चुका है तुम्हारा? यस सर. तो हाँ. चलो तुम लोग करो, तुम दोनों करो, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए. बाकी बच्चे ध्यान दो, है ना. मैंने कब कराया? अच्छा इसके पहले वाला, है ना. देखते तुमको बिना देख के आता है कि नहीं. बाकी बच्चे को आता है क्या? यस बाकी बच्चे. नहीं सर. तो मैं बताऊं तब तक के तुम लोगों को. हाँ तो तुम लोग अपना होने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, तो पीयू और युवराज, सॉरी पीयू एंड अदिति. इज दिस ओके? है ना. क्या बोलती बंद हो गई कि तुम लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो? सर भेज देंगे. अच्छा चलो, अच्छे से मेरे को पूरा डायग्राम बराबर होना है ना. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, तब तक के लिए तुम लोग मुझे म्यूट कर सकते हो अगर मेरे से डिस्टरबेंस हो रहा है ना. वेल इसमें कैसा करते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, तुम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वो डायग्राम ऐसा रहेगा. हाउ विल इट बी द डायग्राम? डायग्राम विल बी लाइक दिस. देयर इज अ लेक. तो लेक ऐसा होता है ना. सो ये लेक में
उस लेक के ऊपर क्या है? बादल, सो देयर आर क्लाउड लाइक दिस। अब इस लेक के कुछ हाइट h पर, मतलब ऑलरेडी ये हाइट h है ना, h के यहाँ से उसको देखा गया सब ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू उसने क्या बनाया? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, है ना। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसने बनाया विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, तो पहली बात ये जो क्लाउड है इसको अपन सी ले लेते, सी फॉर क्लाउड, है ना। तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखेगा? सिर्फ इतना। कितना रहेगा? अल्फा। एग्रीड, है ना, अल्फा रहेगा ना। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। फिर रिफ्लेक्शन की बात है, जितना ऊपर उतना ही नीचे रहता है रिफ्लेक्शन, ये तो रूल ही है सी डैश। तो यहां से तुम लोग जब इसको नीचे देखोगे, इसके रिफ्लेक्शन को, ये नीचे तक, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ तक, है ना। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना दिया हुआ है? बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये हाइट h है तो इतनी वाली हाइट भी क्या होगी? h ही होगी ना। और अपने को जो उसके ऊपर की हाइट है, मतलब ये वाली जो बची कुची हाइट है, ये तो नहीं पता बॉस, तो इसको अपन क्या ले लेंगे? x। तो जितना ऊपर हाइट रहेगा उतना ही नीचे, यही तो रिफ्लेक्शन की खास बात है, वो भी क्या होगा? h प्लस एक्स। ये डायग्राम समझा सबको? नीचे क्लाउड का रिफ्लेक्शन है, ये ऊपर एक्चुअल क्लाउड, ये रिफ्लेक्शन। पहले बताओ, इतना समझा सभी को? हाँ सर। तो इसमें क्या फंडा रहता पता है क्या? इसमें ऐसा लिखना पड़ता है ना, h इक्वल टू हाइट पूरा बताना पड़ता है, और इसका नामकरण भी करना पड़ता है। जैसे अभी सी डैश दे दिए, इसका नाम ले लो a, इसका नाम दे दो b, और ये जो पॉइंट है इसको दे दो d, और इसको दे दो e। तो आपका डायग्राम आपके सामने है पूरा, है ना। तो इस डायग्राम में कैसे खेलना पड़ता वो सिखाता हूँ। देखो इसमें ना एक ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका नाम क्या है? ट्रायंगल ADC। एग्रीड, है ना। अब और एक नीचे राइट एंगल ट्रायंगल है जो है ट्रायंगल ADC डैश, ये वाला। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा दिखा सकते हो कि जो h प्लस एक्स है वो क्या है? हाइट ऑफ क्लाउड विथ रिस्पेक्ट टू लेक, है ना। हाइट ऑफ क्लाउड, अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और बीटा जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, पूरा लिख सकते हो। तो अब कितना सिंपल है, एडी से में आप लोग क्या लोगे? दिखता है अल्फा के हिसाब से क्या क्या है, ये ऑपोजिट। इसमें क्या चीज लॉजिक क्या जाता है वो बताता हूँ। इन दोनों में, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? एडी मानते हो ऊपर वाले ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एडीसी डैश, दोनों में कॉमन एडी है मानते हो? दोनों में कॉमन एडी है, यस और नो? यस और नो, खास करके जोएल एंड युवराज। यस। तो ट्रायंगल एडीसी में राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उसमें अपन क्या लेंगे? tan ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? x अपॉन एडी। तो दोनों से ना एडी निकालते, ये लॉजिक है। तो एडी क्या आ जाएगा? x बाई tan अल्फा, ये हो जाएगा आपका एडी। एक जगह से एक एडी निकलेगा, दूसरी जगह दूसरे, दोनों को इक्वेट करेंगे, मतलब पूरा खेल ये कॉमन का है ना। फिर अभी दूसरा क्या रहेगा क्लास? दूसरा रहेगा इन ट्रायंगल एडीसी डैश, मतलब ये नीचे वाला ट्रायंगल, है ना। इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल एडीसी डैश। फिर से tan बीटा लोगे, इस बार tan बीटा क्या आएगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट कितना लंबा है इसका? ये यहां से लेकर यहां तक है, तो क्या है? h प्लस x ऑपोजिट अपॉन एडी। वापस एडी आ गया, देख रहे हो, वापस एडी आ गया। तो एडी कितना आ गया? 2h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा। क्लियर है यहाँ तक? है ना, तुम दोनों क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। यस युवराज, ये दोनों स्टेप क्लियर है? दोनों का देखो एडी निकाला, हाँ सर। बस अब कुछ भी नहीं रह गया।
मेरे को अल्टीमेटली क्या निकालना है, h प्लस एक्स, हाइट ऑफ द क्लाउड। क्वेश्चन में देखो ना, ऊपर देखो ब्लैक कलर में लिखा था, तुमने लिखा भी है, क्वेश्चन देख लेना, है ना। अब मुझे अल्टीमेटली हाइट ऑफ द क्लाउड निकालने के लिए मुझे 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट। सो इफ आई इक्वेट 1 इक्वल टू 2, देन व्हाट इम्प्लीकेशंस डू वी हैव। 1 इक्वल टू 2 का मतलब होता है x बाई tan अल्फा विल बी इक्वल टू 2h प्लस x बाई tan बीटा। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये x के साथ क्या आ जाएगा, tan बीटा, और ये tan अल्फा इधर 2h के साथ भी tan अल्फा जाएगा, और x के साथ भी क्या जाएगा, tan अल्फा। इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, क्योंकि x ही तो अननोन है ना, ऊपर देखो ना, बाकी h तो हाइट दिया हुआ था। सो आप इसको इधर से इधर लाओगे, इसको इधर से जैसे इधर लाओगे तो क्या सीन होगा क्लास, क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, बताओ क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, है ना। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan बीटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या, tan अल्फा इक्वल टू 2h tan अल्फा। उससे x की वैल्यू निकल आएगी आपकी क्या, 2h tan अल्फा होल अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब तुम बोलोगे सर ये तो आंसर नहीं है, प्रूफ तो कुछ और करना है। तो मैं अभी भी कंप्लीट कहाँ किया, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, h प्लस एक्स। तो h प्लस एक्स मतलब क्या, h प्लस ये वाला ब्रैकेट, बोले तो 2h tan अल्फा अपॉन, है ना, अपॉन क्या, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा आपकी जानकारी के लिए, एलसीएम, ये इकड़े जाएगा, ये तिकड़े जाएगा, तो h tan बीटा जा, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, h tan बीटा जा, h tan बीटा, है ना, माइनस फिर h अंदर घुसेगा, माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा होल अपॉन tan बीटा, एक मिनट, tan क्या हो गया मेरे, इसको पेन को, हाँ, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब माइनस h tan अल्फा और 2h tan अल्फा में से गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बचेगा, क्या बचेगा, h tan बीटा तो यहाँ पे बचा, माइनस h tan अल्फा और 2h tan अल्फा, मतलब 2h में से एक h गया, तो कितना बचेगा, प्लस h tan अल्फा अपॉन क्या, tan बीटा। अब कॉमन क्या निकल रहा है ऊपर से, बताओ, व्हाट इज कॉमन आउट हियर, कम ऑन, कॉमन इज h, तो क्या बचेगा, tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा minus tan alpha. So this is the height of the cloud, right? समझा सभी को बच्चा, है ना। तो आप लोग पहले इतना सॉल्यूशन लिखो, फिर मैं नीचे का दिखाता हूँ, समझा क्या, Yes. हाँ भाई। सर। हाँ, तो अभी पहले इतने स्टेप्स लिखो। यस, पीयू और अदिति आया, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस विथ योर टीचर यू विल हैव मोर प्रिविलेज। अदिति, पीयू, सर आ गया है, कर भी लिया। दिखाओ, स्क्रीनशॉट भेजो, सॉरी स्नैपशॉट भेजो, नॉट स्क्रीनशॉट। कल हम लोग इसके ऊपर मस्त एमसीक्यू करेंगे, चिंता मत करो, बहुत एक से एक एमसीक्यूज है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी है।
आदित्य ने भेजा है, देखते हैं। ये तो सिर्फ डायग्राम हो गया मिस, इसका सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, अब सॉल्यूशन भी भेजा तुमने, गुड। टू 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 टू, गुड। और सर इसके आगे का नहीं आया था मेरे को। उसके आगे का, उसके आगे करना क्या है? एच कॉमन निकाल लो, वही तो आंसर हाँ सर, है ना, बस हो गया। इसे भी आंसर ही मानेंगे ना? हाँ, इसको भी आंसर बना। यस, व्हाट अबाउट पीयू? बेटा आप गुड, अदिति गुड अटेम्प्ट। पीयू है कि नहीं पता नहीं। सर भेज रही हूँ मैं। हाँ, अच्छा, और एक बात मैं तुम लोग को बताता हूँ कि बाकी लोग जो लिख रहे हैं आगे स्क्रॉल डाउन करूँ क्या, थोड़ा सा नीचे करूँ? बॉयज बॉयज बॉयज, युवराज, जोएल, नीचे करूँ क्या? हाँ सर। हाँ, ये है नीचे वाला सॉल्यूशन, थोड़ा सा बड़ा करता है हल्का सा। वेल, अभी बहुत ज्यादा स्कोप है पता है इसके ऊपर वो आने का, केस स्टडी। देखते कल एक केस स्टडी ले सकता हूँ तो मैं वो भी लूंगा। और मैं क्या बोल रहा था, एक बहुत अच्छी बात, देखो मेरे दिमाग से उड़ गया। हाँ, तुम्हारा डेट शीट आया क्या? सभी को पूछ रहा हूँ। यस सर, आ गया। 19 से है सेकंड प्री बोर्ड। ये हो गया तुम्हारे स्कूल का, है ना? और बोर्ड एग्जाम कब से है मेन? ये क्रैश कोर्स को हम लोग लाइक तुम लोग का तो अभी हो जाएगा 15 तक एंड, तो इसमें बीच बीच में अगर मैंने कुछ एडिशनल ये लिया, मतलब सेशंस लिया जिसमें मैं थोड़ा हायर क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर की बात चालू थी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ये वन ऑफ द एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं, और कुछ कुछ तो इतने अच्छे हैं कि वो ऐसे नॉर्मली जमते नहीं, खास करके आर डी शर्मा वाले क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे हैं। आर डी शर्मा में एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे दिए। डन होने के बाद लिख देना डन। अच्छा, अभी पीयू ने भी भेजा है, लेट्स सी। हम्म, थोड़ा कैलकुलेशन में तुम, ये हो गया क्या बेटा? 2h + x। तुम अच्छा, तुम दोनों को एक बात बताओ, तुम दोनों ना लिखते हो इसको और थोड़ा सा ना क्लैरिटी के साथ लिखोगे ना तो तुमको अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब लाइक दिस इज गुड, नो डाउट। सर अभी तो ऐसे ही रफ लिख दिया ना, जल्दी हाँ जल्दी। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जल्दी, वो जल्दी जल्दी वाली जो आदत है, वो अभी बोर्ड एग्जाम नियर हो रहा है ना, तो अभी तुम लोग जो भी करोगे वो खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव में तो कैसा भी चलता है यार, तो उसमें तो कोई देखने भी नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरे शिद्दत से करना, है ना, एक एक चीज तो वो आदत लगेगी, इससे स्पीड बढ़ेगा। नहीं तो एग्जाम में भी ऐसा होता है, ट्रस्ट मी, कि अपन फिर वो स्टक हो जाते हैं एक जगह। सो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करना है तो तुम एक काम करना ना, इसका पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दिया क्या सभी ने, कि चालू ही करने के है, या आधा अधूरा? यस, एनसीईआरटी का क्या?
कर लिए क्या कंप्लीट सभी ने, या फिर सर सिर्फ कंस्ट्रक्शन बचा है, बाकी तो सब हो ही गया। नहीं? इसके हर एक क्वेश्चंस आ गए, हर एक ये हाइट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। हम्म, तो फिर तो एक अच्छी बात है, फिर तुम एग्जाम्पलर कर सकते हो। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का मैंने लिस्ट भेज दिया है। हाँ, वो स्टैंडर्ड बुक है एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी का इंटेड। सो उसके क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता है इसमें बहुत अच्छे मार्क्स है। वेटेज पता है इसका, इस चैप्टर का? बताओ तो तुम लोग को क्या आइडिया, देखते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का वेटेज कितना? 8 या फिर 7 मार्क्स है समथिंग। हाँ, तो इतना ज्यादा बड़ा, इतना छोटा चैप्टर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंटेंट देखो ना, कुछ भी नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, खत्म। लेकिन 7-8 मार्क्स का अगर चैप्टर है बेसिक और क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड में, सो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जोएल, युवराज, पीयू, अदिति, अदिति कहाँ चली गई? अदिति इज गॉन क्या? नहीं है, तो सबको करना है। यस, आई एम स्टॉपिंग। हो गया क्या युवराज एंड जोएल लिखना? यस और नो? हाँ सर। अच्छा, जोएल? हाँ सर। हाँ, सो प्लीज ध्यान देना, हम लोग को अभी से सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है ना? सी, राइटअप कैसे लिखना? सबको लगता है कि बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, होता है ना फर्क। इवैल्यूएशन का बहुत, असेसमेंट का बहुत फर्क होता है। हो सकता है तुम 100 में से 80 में से 80 ला सकते हो, किसमें? जैसे मैंने लास्ट टाइम खुशी को बोला था, 80 में से 80 लाई ना उसने, अच्छी बात है ना, कॉन्फिडेंस के हिसाब से। बट वही पेपर अगर बोर्ड वाले चेक करेंगे तो चांसेस है 80 में से उसके मार्क्स कट जाए, क्योंकि उन लोग स्टेप्स पे बहुत ध्यान देते हैं और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं, और मॉडल आंसर पेपर रहता है उनके पास। तो मॉडल आंसर पेपर नॉट अ बिग डील, हम लोग इतने साल से देखते आ रहे, लोग कांटेक्ट में है, तो हम लोग को मतलब वो उस टाइप का एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, तो वो तो फिर लीक हो गया पेपर, ऐसा कैसा हो सकता है? तो मॉडल आंसर पेपर कैसा बनता है, कैसा रहता है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वैसे भी एक सैंपल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोडेड है ना? तो आप लोग सभी अपने अलग अलग जितने भी पेपर्स बने हैं ना, वो भेजना, जैसे लास्ट टाइम भेजे थे वो तो है ही है, मेरे पास और भी बच्चों के आए हैं, तो हम लोग उसमें से बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेंगे। एग्रीड ऑल ऑफ यू? शो मी योर थम्स अप। राइट, सो कल सर मुझे हाँ हाँ बोलो। सर जैसे हमारा एक कोर्स खत्म हो जाएगा 45 डे, हम्म, उसके बाद हमें डाउट रहा तो हम पूछ सकते हैं क्या आपसे? हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, जरूर पूछ सकते, मोस्ट वेलकम। और डाउट्स के लिए फिर तुमको जमा करना पड़ेगा एक साथ, है ना? ऐसा रोज के बेसिस पे तो नहीं, one day we will have to fix and we can clear the doubts, है ना? Okay, okay, चलो, see you next class with exemplar questions, right? और बहुत अच्छे वाले, तब तक कि तुम अपना, मैंने जो शीट भेजा है exemplar का उसको करते रहो। चलो, टेक केयर, बाय बाय।